Hello everyone, welcome to CSCP YouTube channel. So we are going to have newspaper editorial analysis today. So the topic which we are going to discuss is no confidence motion against speaker first. Number second would be private member bill, and number third would be solid waste management rule 2026. So before we start the editorial analysis and the discussion, let's first get to know about the crash course which we are going to launch soon. So the features which we are providing in our crash course would be 10 smarts book for prelims, then personalized mentorship, which is very important while preparing for any exam. Sometimes we just lost कि अब क्या करें, ठीक है? So personalized mentorship will definitely help you that how to proceed and what are the topics and what are the criteria which we can follow to get success easily. ठीक है? Next one, 15,000 MCQs test series plus daily newspaper analysis. So these are the features which would be provided to you in our crash course. So this is the number. If you have decided to take the crash course, so you can dial this number and get all the information. Apart from this, we are also running a series where we are discussing questions which are related to prelims exam, whether you are appearing for UPSC, whether you are appearing for APSC, where we are going to discuss where we are going to give 15,000 MCQs, but out of this 15,000 MCQs, 3,000 would be freely given to you live on the YouTube channel, and rest of the PDF या तो फिर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस या तो फिर बाकी कोई भी PDF अगर आपको लेना है, so you can download through this QR code. So let's get into the editorial analysis. So the first topic is no confidence motion against speaker of LS, that is Lok Sabha. ठीक है? So first of all, this word say no confidence motion, everyone would be familiar. Whoever is preparing for the civil service exam, you must be familiar with the term no confidence motion. So we have heard this no confidence motion in terms of आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है? सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ मोशन पास होता है तभी हम जाके उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, ठीक है? बट laymanly we are using the term no confidence motion for Lok Sabha speaker as well, ठीक है? We can just say the removal motion, ठीक है? Basically we need to say the removal motion because no confidence motion, as we all know, that it is basically related to the council of minister के अगेंस्ट, ठीक है? जैसे कि हमने काउंसिल नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा था एंड उसके बाद हमने सेंश्योर मोशन पढ़ा था, ठीक है? सो इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देन दे हैव टू रिजाइन. दैट मीन्स आपकी सरकार उसी समय गिर जाएगी, ठीक है? सो वी हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस न्यूज लेटली everywhere in our current affair, ठीक है? So let's discuss the issue first. Lok Sabha Speaker Om Birla has decided on moral grounds that he will not attend the proceedings of the House till the no confidence motion notice brought by the opposition against him is resolved. Yesterday, that as I have discussed previously, that the news has been taken from the week. So in the date 11 Feb 2026, opposition gave a notice of a no confidence motion against the Lok Sabha speaker, ठीक है? So first we have to understand what are the powers and position, what kind of position a Lok Sabha speaker enjoys, what are the criteria through which we can elect the Lok Sabha speaker, what are the criteria of him getting removal from the Lok Sabha, ठीक है? So जैसे कि अगर हम लोग देखें फर्स्ट इनिशियली लोक सभा स्पीकर का जो भी इलेक्शन है, ठीक है, दैट इज डन थ्रू दी आर्टिकल 93, ठीक है? सो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है बिकॉज लोकसभा का स्पीकर जो है प्लस डिप्यूटी स्पीकर जो है वो दोनों ही पोस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 93, ठीक है?
सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। सो डेप्यूटी स्पीकर एंड स्पीकर दोनों का इलेक्शन आपका आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। प्लस जनरली अ मेंबर बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज द स्पीकर, बट जनरली कन्वेंशन क्या होता है कि यूनानिमसली स्पीकर को चूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ डूइंग द इलेक्शंस। बट ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस नहीं हुए हैं, ठीक है, इलेक्शंस भी हुए हैं एंड इलेक्शंस के थ्रू भी हमने स्पीकर्स को नॉमिनेट किया है, ठीक है। बट जनरली क्या होता है आपका, यूनानिमसली जो पार्टी के मेंबर होते हैं with the consultation of the opposition they choose a member without any objection, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसी रूल के अकॉर्डिंग लोकसभा के स्पीकर को चूज करते हैं। वी हैव अनदर वे ऑफ इलेक्टिंग द एंड नॉमिनेटिंग लोकसभा स्पीकर इज दैट इलेक्शन, ठीक है। सो अभी तक जितने भी हमारे पार्लियामेंट्री सेशन हुए हैं वहां पे अभी तक हमने 3 बार इलेक्शन किया है, ठीक है। अभी 3 बार जितनी बार भी हमने इलेक्शन किया है, let's give the date, in the year 1954, in the year 1976 and in the year 2024, ठीक है। बाकी जितने भी साल आपके लोकसभा के स्पीकर को हमने नॉमिनेट किया है दैट इज थ्रू यूनानिमसली, ठीक है, तो उनका हमने इलेक्शंस नहीं किया है। सो लेट्स सी द पावर ऑफ लोकसभा स्पीकर्स। सो लोकसभा स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो जितने भी मीटिंग्स, जॉइंट सेशन, ठीक है, तो वो सारे के सारे किसके द्वारा प्रिसाइड किए जाते हैं, आपके स्पीकर के थ्रू, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, लोकसभा स्पीकर इज गिवन द पोस्ट रैंक नंबर 6, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो लोकसभा स्पीकर का जो रैंक है दैट इज 6 नंबर। अपार्ट फ्रॉम दिस लोकसभा स्पीकर जो है वो आपके जॉइंट सेशन में प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। प्लस जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटी है he is the head there, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकसभा स्पीकर जो है उनका जो भी इलेक्शन का डेट है दैट वाज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। सो एज इट इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट, एज आई सेड कि हर बार आपका इलेक्शन नहीं होता है, तो जब भी इलेक्शन होगा तो वो आपके प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे एंड उन्हीं डेट में आपका इलेक्शन होगा। ऑन द अदर हैंड इफ वी सी रिगार्डिंग डेप्यूटी स्पीकर, उनका इलेक्शन का डेट जो भी है वो आपके स्पीकर के थ्रू, लोकसभा स्पीकर के थ्रू ही फिक्स किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर लोकसभा का स्पीकर कहीं पे इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उनका नो डाउट ही इज अ मेंबर फ्रॉम लोकसभा ओनली, ठीक है, एंड ही हैव टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली। इनिशियली ऐसा होता था कि लोकसभा का जो स्पीकर है एंड जो डेप्यूटी स्पीकर है प्लस राज्यसभा का जो भी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड स्पीकर है, दे वेर चूजन थ्रू अ पर्टिकुलर मीन्स। बट अभी क्या हो गया है कि जब भी आप लोकसभा के जब भी आप स्पीकर को चूज करोगे ही हैव टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। बट डेप्यूटी मेंबर के साथ ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, बट आपका लोकसभा का स्पीकर हैव टू बी फ्रॉम दी लोकसभा ओनली, ठीक है। अब वो आपकी राज्यसभा से नहीं हो सकता, ठीक है। On the other hand, we have to see Article 94 says something else. So since Article 93 in which we saw how to elect the Speaker of Lok Sabha, in Article 94 we would be seeing how to remove the Speaker of Lok Sabha, ठीक है। The Speaker may be removed by the resolution of the Lok Sabha passed by a majority of all the then members of the House. This is known as effective majority, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी लिखा हुआ है, ठीक है, एंड आई डिड नॉट टेल यू द प्रोसेस एंड द मेजोरिटी विच वी हैव टू फॉलो व्हाइल वी इलेक्ट दी एंड व्हाइल वी नॉमिनेट दी लोकसभा स्पीकर। सो इलेक्शन के प्रोसेस में वी नीड टू हैव सिंपल मेजोरिटी एंड रिमूवल के प्रोसेस में वी हैव टू हैव इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि वी फॉलो द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी व्हाइल रिमूविंग द लोकसभा speaker, ठीक है। So let's get a quick idea about what is simple majority and what is effective majority. Simple majority would be, for example, अगर आपके पास 545 मेंबर है लोकसभा में, ठीक है, तो 545 मेंबर अगर लोकसभा में है that doesn't mean कि हर पार्लियामेंट्री मीटिंग में आपके 545 मेंबर ही बैठे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उस दिन कुछ मेंबर्स नहीं आए, ठीक है। तो सोचो कि आज का जो भी पार्लियामेंट्री मीटिंग है उसमें आपके पास सिर्फ 200 लोग हैं,
अब सोचो इसमें अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी के साथ कुछ जीतना होगा, दैट मीन्स वी हैव टू ब्रिंग 100, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट है उसके हाफ से ज्यादा, ठीक है। सो इसका अगर हाफ 100 होगा +1, ठीक है, दैट इज नोन एज सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। सो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू यू कैन इलेक्ट दी एंड नॉमिनेट दी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग देखें कि अगर हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी देखना होगा, अब सिंपल मेजॉरिटी एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, ठीक है। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी? सो अब जैसे कि मैंने बोला 545 मेंबर, तो यहाँ पे मैंने बात किया कि 200 मेंबर्स वेर प्रेजेंट इन द लोकसभा, दैट्स व्हाई वी सॉ दी हाफ, ठीक है। अगर 200 मेंबर प्रेजेंट है उसका अगर हाफ देखें तो इट वुड बी 100 एंड उसी का +1 इट वुड बी 101, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम इफेक्टिव मेजॉरिटी देखेंगे वहां पे हमें प्रेजेंट एंड एब्सेंट मेंबर को नहीं देखना है, वहां पे हमें ये देखना है कि कितने लोगों ने सीट को फिल करके रखा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारे पास 545 पोस्ट है एंड सीट्स है इन लोकसभा, ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे सीट्स हमेशा फिल रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मेंबर की डेथ हो गई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मेंबर को किसी और पार्टी में कहीं जाना हो, ठीक है। सो मे बी कुछ कुछ सीटें आपकी वेकेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज करना है कि अगर सोचो कि यहाँ से आपकी 5 मेंबर नहीं है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 540, ठीक है। सो 540 का जो भी आधा होगा उसी का +1 वुड बी और सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, सॉरी इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। तो सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट है, वी आर नॉट काउंटिंग द सीट विच आर वैकेंट, बट वी आर काउंटिंग द पीपल हु आर देयर एट दैट मोमेंट, उसी का हाफ +1 वुड बी और सिंपल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे हम लोग एब्सेंट एंड प्रेजेंट का नहीं देख रहे, बट वी आर लुकिंग एट दी नंबर ऑफ सीट्स विच आर फिल्ड, ठीक है। अब इसके अलावा भी और एक चीज आपको देखना है कि यहाँ पे जो भी मैं +1 कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोरम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी पार्लियामेंट्री मीटिंग करते हो वहां पे कोरम का होना इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने बोला कि हमारे पास 545 मेंबर है लोकसभा में, तो इसका कोरम वुड बी, कोरम हमेशा आपका 10% हो जाता है, जब भी जितने भी आपके मेंबर हो उसका 10% शुड बी प्रेजेंट इन एनी XYZ मीटिंग, ठीक है। तो ये आपका 10% अगर हमें यहाँ पे देखने को मिले तो इट वुड बी आपका 54.5, सो वी कैन से 55 वुड बी द कोरम ऑफ अ हाउस, ठीक है। उसका +1 वुड बी द मेजॉरिटी, ठीक है। सो सिंपल मेजॉरिटी एंड आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि व्हाट वी हैव लर्न दैट विद आर्टिकल 93 वी कैन इलेक्ट द स्पीकर ऑफ एनी स्पीकर ऑफ लोकसभा, with the article 94 we can remove the speaker of lok sabha, ठीक है। apart from this we have discussed what are the powers of speaker, ठीक है, what are the roles which is performed by the speaker, and then we will now again see how and what are the condition through which we can see that speaker's post is vacant. first resignation, ठीक है, स्पीकर के पोस्ट को हम लोग किस तरह से खाली देख सकते हैं, फर्स्ट रेजिग्नेशन, ठीक है। सेकेंड, अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एम्फसाइज किया था, स्पीकर हैव टू बी फ्रॉम लोकसभा ओनली, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये हिस्टोरिकली फॉलो किया गया है, हिस्टोरिकली टिल अ पर्टिकुलर ईयर आपका ये जो क्राइटेरिया है, इट डजेंट मैटर कि वो जो स्पीकर है वो लोकसभा को बिलोंग करे या तो फिर आपके राज्यसभा को बिलोंग करे, बट फ्रॉम 2010 ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो स्पीकर है ही हैव टू बी फ्रॉम दी लोकसभा ओनली, दैट मीन्स फ्रॉम दी रूलिंग पार्टी ओनली, ठीक है। सो दीज आर द कंडीशन जहां पे हमें स्पीकर का पोस्ट वैकेंट मिल सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द क्राइटेरिया थ्रू विच वी कैन रिमूव स्पीकर फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है। सो द Article 94 it says the speaker may be removed by a resolution of the Lok Sabha passed by a majority of all the then members of the house. This is known as an effective majority, ठीक है। Apart from this, if the motion is passed, the speaker is removed immediately but continues as an MP, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम उसको स्पीकर के पोस्ट से जब हटा देंगे बट वो एज ए MP काम करना वो उसी तरह से कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्पीकर के पोस्ट से गया है बट उसका जो MP का पोस्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
वो हमने नहीं छीना है, वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही उसके बाद कंटिन्यू करते रहेंगे, और जो भी नॉर्मल वर्क विच इज डन बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही वुड बी कंटिन्यूइंग डूइंग दैट, ठीक है। बट जो स्पीकर का पोस्ट है, जो उसको एक्स्ट्रा पोस्ट मिला हुआ था, उससे वो हटा दिए जाएंगे, ठीक है। एंड बिफोर वी रिमूव एनी स्पीकर फ्रॉम लोकसभा वी हैव टू इंटिमिडेट हिम, ठीक है, दैट वी हैव टू गिव हिम नोटिस फॉर एटलीस्ट 14 days। बिना 14 दिनों के नोटिस के हम उनको रिमूव नहीं कर सकते। So at least 14 days written notice must be given before moving the resolution. अब इसी में अगर हम लोग resolution का प्रोसेस देखें, that हम अब स्पीकर को कैसे रिमूव करें, ठीक है। So before we pass any no confidence motion or removal motion against the speaker, we have to be, the motion have to be signed by at least 2 members of the parliament, ठीक है, and that motion have to be supported by again 50 members of the parliament, ठीक है। तो अगर ये पास हो जाता है विद द हेल्प ऑफ 50 मेंबर्स के सपोर्ट के साथ, देन वी विल गिव द नोटिफिकेशन टू द स्पीकर, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 14 डेज का नोटिस डेफिनेटली एंड मैंडेटरीली हमें देना पड़ेगा। मिनिमम सपोर्ट ऑफ एडमिशन, दैट मीन्स द मोशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड फॉर डिस्कशन, ठीक है। इट हैव टू बी साइंड बाय 2 members or more than 2 members, ठीक है, बट इट हैव टू बी अगेन supported by 50 members from the house, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ मोशन। अब जब आपका मोशन चल रहा है आपके अगेंस्ट कि आपको रिमूव करना है, उस समय आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। एज अ स्पीकर, द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द मोशन। द डेप्यूटी स्पीकर और अनदर स्पीकर मेंबर प्रिसाइड्स। जैसे कि अगर अभी के केस में देखें, करंट सिचुएशन में अगर देखें, वी डू नॉट हैव एनी डेप्यूटी स्पीकर, and that too since 2019. So at current situation in the year 2026, we do not have any deputy speaker. Now lots of question raises at this situation, ठीक है। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही रूल लिखा हुआ है कि अगर हमें स्पीकर, अगर किसी भी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है, ही हैव टू राइट द लेटर टू डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। सो अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो वो किसको देगा, ठीक है। सो ही कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू सेक्रेटेरिएट ऑफ जनरल के, कहाँ के, लोकसभा के, ठीक है। तो वो उनको अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। प्लस सोचो कि अगर अभी के सिचुएशन में जैसे कि डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, हु वुड प्रिसाइड द मीटिंग? सो इट वुड बी डिसाइडेड बाय द, यूनानिमसली अगेन डिसाइडेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। द स्पीकर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट एंड डिफेंड हिमसेल्फ। तो जब भी ये प्रोसेस उनके अगेंस्ट चल रहा है, रिमूवल का प्रोसेस, स्पीकर को ये डेफिनेटली राइट है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके एंड वो खुद को डिफेंड भी कर सके, ठीक है। सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें देखी, दैट वुड बी फ्रॉम वन लाइनर, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड भी आपका हो सकता है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हमने वन लाइनर में क्या देखा, विच वॉज द आर्टिकल थ्रू विच वी कैन नॉमिनेट speaker is article 93, and for the removal of speaker, that is article 94. How many members have to support the removal of speaker in Lok Sabha? It have to be supported by 50 members, but it have to be signed by 2 members of Lok Sabha, ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या देखा था कि स्पीकर का जो रिमूवल है उसका प्रोसेस क्या था, that he would be eliminated and he would be removed through the effective majority, not absolute majority, ठीक है। He is selected with the help of simple majority, but he is removed with the help of effective majority, not absolute majority, ठीक है। So I am repeating this line again and again because there are some book जहाँ पे absolute majority लिखा गया है, so we do follow that book, so that's why you can just correct it, ठीक है। Okay, so the next topic is about private member bill. So whenever we say the private member bills, first we have to understand who is a private member in the parliament, ठीक है। So अब private members, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, जितने भी हमारे पास so this is a circle, जैसे कि Venn diagram के अकॉर्डिंग अगर मैंने आपको बताया, so this is a circle of MPs, that is member of parliament, ठीक है। अब इसी member of parliament में हमारे पास आ जाएंगे जैसे कि प्राइवेट मेंबर, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएंगे आपके मिनिस्टर, ठीक है।
तो मिनिस्टर भी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है एंड प्राइवेट मेंबर भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर? बिकॉज मिनिस्टर को एक पर्टिकुलर पोस्ट असाइन किया जाता है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सो दीज आर मिनिस्टर बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मेंबर वहां पे मौजूद है दे आर प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। सो प्राइवेट मेंबर्स एंड मिनिस्टर्स में हमें डिफरेंस अभी पता चल गया। सो लेट्स रीड द न्यूज। अब किस वजह से न्यूज में है? रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल was introduced in the Rajya Sabha to amend the Census Act 1948 to mandate a nationwide census every 10 years. ठीक है? The bill highlights that although India has followed decennial census practice, decennial means 10 years of, ठीक है? So इस हम लोग जनरली 10 years का ही करते थे, हर 10 साल में आपका सर्वे होता था एंड उसके बाद आपका इलेक्शन वहाँ पे किया जाता था, ठीक है। तो जो भी सेंसस वहाँ पे सेंसस किया जाता था। सो इट इज नॉट लीगली मैंडेटेड। द stresses that regular census data is crucial for effective delivery of welfare schemes and public services. तो we have been seeing that कि there are lots of situations जहाँ पे आपके सेंसस कंडक्ट नहीं किए जा रहे, ठीक है। The last census which was conducted in the year 2011, ठीक है, उसके बाद से सेंसस अभी तक कंडक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट टॉपिक कि किस टॉपिक पे ये प्राइवेट मेंबर का बिल आया है। द इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट इज द प्राइवेट मेंबर बिल, हु आर प्राइवेट मेंबर, ठीक है, हाउ दीज प्राइवेट मेंबर्स बिल आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बिल, ठीक है। तो अभी उसमें समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो जो भी हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं एंड उसमें जो भी इशू आ रही है दैट टू बहुत सालों से, ठीक है। अब ये जो इशू है ये बहुत साल से इसलिए बहुत टाइम से इसलिए भी आ रही है क्योंकि 1970 वाज द लास्ट ईयर जहां पे आपके प्राइवेट मेंबर बिल को एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, ठीक है। सो वी विल हैव टू सी फ्यू थिंग्स according to the exam point of view which is again important, which I am thinking कि definitely आपके एग्जाम पे पूछा जाएगा, ठीक है। अब प्राइवेट मेंबर बिल जैसे कि अभी हमने बोल दिया कि these are the members who are not minister but they wanted to highlight some of the problems either in their constituency or either in public manner, ठीक है। सो जब भी ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाता है उसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनली देयर आर सम ड्रॉबैक्स, जैसे कि हम हर दिन कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ प्राइवेट मेंबर एंड आई कांट रेज एनी इशू ऑन एनी रैंडम डेज, सो आई हैव बीन गिवन अ फिक्स्ड डे टू इंट्रोड्यूस अ बिल, दैट इज अ फ्राइडे, ठीक है, नॉट अ फ्राइडे, आई एम सो सॉरी, दैट इज फ्राइडे। तो आप शुक्रवार के दिन ही आप अपना बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या तो फिर आपका जो भी इशू है यू कैन रेज ऑन दैट डे ओनली, ठीक है। सो द नंबर ऑफ डेज आर वेरी लेस, ठीक है, पूरे वीक में आपको एक ही दिन दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी सी private members are given less importance and their concern was given less important as compared to the executive member and those of minister, ठीक है। तो उनके कंपैरिजन में इनका जो भी बिल है उसको बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। प्लस अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन भी देखें पूरे के पूरे सिटिंग में, उनका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द ड्रॉबैक्स जो कि आपके प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस होने से रोक रहा है, ठीक है। But that doesn't mean कि we should ignore the private member bills, ठीक है। The significance which we can see in the private member bills which are listed here, significance of the private member bills, let's see, policy innovation, ठीक है। तो जब भी हम प्राइवेट मेंबर बिल को देखते हैं या तो फिर हम सुनते हैं, we can see the policy innovation there. So why is the policy innovation? Because as we are designating the person as a private member bill or the bill as a private member bill, that person is not associated with any particular party, ठीक है, not exactly, but जैसे कि for example if we take शशि थरूर, ठीक है, तो he belongs to the INC, but whenever he, जैसे कि उसमें कोई ministerial post नहीं है, so he is not biased according to his whenever he put some of the issue in his bill, ठीक है। तो उसी तरीके से we saw and we see lots of innovation whenever they bring and try to bring some of the bills, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज समझना है कि बिल पास इसलिए किया जाता है because it have to be going to become the law,
ऑफ द कंट्री, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट पॉइंट देखा पॉलिसी इनोवेशन, सेकंड पॉइंट इज डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन. सो इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन, जैसे कि एनेबल एमपीज टू अडॉप्ट इंडिपेंडेंट, सॉरी, democratic expression enables MPs to adopt independent positions without party whip constraint, ठीक है. For example, Shashi Tharoor's Women's Reservation Bill in the year 2016. Then again, it shows accountability tool, ठीक है. तो जैसे कि अगर कोई member किसी particular चीज से associated है and किसी particular party से associated है, so उसमें थोड़ा सा आपका biasness आ जाता है, like you tend to move towards that thinking and POV, but इसमें आपका accountability tool भी देखा जाता है, ठीक है. Next one, constituency advocacy allows MPs to propose laws customized to regional and community needs. दो अगर हमारे या तो फिर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर बिलोंग करते हो, उसमें अगर कोई भी मिनिस्टर नहीं है, दो these members bring the private member bills and they highlight the situation which is going on in your area, ठीक है. So that's why private member bills are very very important. So I'm expecting some of the questions regarding the private member bills in this prelim, ठीक है. So let's see the reason of declining trend in the private member bills. Passage rate अगर हम लोग देखें, only 14 private member bills have passed since independence, with the last in 1970, which we have already discussed, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्कशन टाइम, ठीक है. अभी रीजन क्या क्या है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स पास नहीं हो रहे मोस्ट ऑफ द टाइम. वी हैव सीन कि द पैसेज रेट, ठीक है, प्लस द डिस्कशन टाइम विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, अब यहाँ पे मिनिस्टर्स का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पोस्ट, सो दे ट्राई टू हाईलाइट मोस्टली ऑफ देयर ओन इशूज, ठीक है. एंड यहाँ पे अगर देखिए प्रोसीड्यूरल कॉन्स्ट्रेंट मीन्स दे आर अलॉटेड अ वेरी लेस टाइम, ठीक है. उनको फॉर एग्जाम्पल लेस टाइम तो दिया ही जाता है, प्लस इफ दे हैव टू इंट्रोड्यूस एनी बिल दे हैव टू वेट फॉर 1 month. दैट मीन्स बिफोर दे इंट्रोड्यूस द बिल दे हैव टू वेट फॉर 1 month. 1 महीने का उनको नोटिस, जैसे कि 1 महीने पहले ही उनको ये अपना जो भी इशू है उसको फॉरवर्ड करना होता है, सो दैट नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में उनका जो भी इशू है उसके ऊपर डिस्कस किया जाए. सो 1 month इज रिक्वायर्ड टू गिव परमिशन टू द प्राइवेट मेंबर बिल्स इन द लोकसभा सेशन और इन एनी राज्यसभा सेशन, ठीक है. सो दीज आर द कॉन्स्ट्रेंट विच दे फेस. दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ acceptance of private member bill is very very less, ठीक है. Next one is again a very important topic from our prelims point of view, that is solid waste management rule 2026, ठीक है. इससे पहले जो भी रूल आया था that came in the year 2016, ठीक है. अब यहाँ पे मैं कुछ जो भी यहाँ पे आपके पास आया है that is totally from the PIB के, ठीक है. PIB से मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे वो न्यूज़ लेके आई हूँ. लेट्स रीड. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026. अब यहीं पे हमें अपने एग्जाम का इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाता है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, MOEFCC, जिसके बारे में हमने बहुत बार एग्जाम के पर्पस से पढ़ा ही होगा, ठीक है. It has introduced the solid waste management rule 2026. Next thing, the last one was in 2016. The rules have been notified under the Environment Protection Act 1986. अब ये जितने भी रूल है वो किसके अंडर में दिए गए हैं? Environment Protection Act 1986, ठीक है. अब जब भी कोई भी process and the function which is put under the Environment Protection Act 1986, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड विल कम्स इनटू फुल इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1st 2026. दैट मीन्स अभी तक आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, वो आपके 1st अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होंगे. द रिवाइज्ड रूल integrate the principles of circular economy. So we have to see what is a circular economy. तो यहाँ पे कुछ टर्म है, ठीक है.
circular economy, again which would be important from your exam point of view. So circular economy would be a round economy. That means everything is getting recycled in your economy. So whatever you are producing as a producer, it have to be get recycled. Okay? So that is what circular economy. And the extended producer responsibility. So extended producer responsibility, that means, for example, if I'm making this pen, ठीक है, अगर मैं ये पेन बना रही हूँ तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस पेन का इंक खत्म हो जाए, ठीक है, या तो फिर इस पेन का यूजेबिलिटी खत्म हो जाए, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? इसको मैं फेंक दूंगी, कोई कबाड़ी वाला ले जाएगा, या फिर ये प्रॉपर तरीके से डिस्पोज होगा, ठीक है. सो दैट वुड बी द क्वेश्चन मार्क which is given, that is the responsibility which is given to the extended producer responsibility. तो जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोड्यूसर XYZ चीज प्रोड्यूस कर रहा है, he have to take the responsibility of those products and goods. ठीक है. सो यहाँ पे की पॉइंट मैंने आपको एक एक बता दिया है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला रूल लेके आए हैं. एंड ये किसके अंदर पे है? एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट 1986. एंड देन वहीं पे हमें दो नए टर्म मिलते हैं, दैट इज योर सर्कुलर इकोनॉमी फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. The rules provide for the levy of environmental compensation based on the polluter's pay. ठीक है, polluter's pay means जो pollute कर रहा है वही पे करेगा या तो फिर वही मैनेज करेगा. Principle for non-compliance including cases of operating without registration, false reporting, submission of forged documents or improper solid waste management practices. ठीक है, solid waste management practices. The Central Pollution Control Board will prepare the relevant guidelines while state Pollution Control Board and Pollution Control Committees will levy the environmental compensation. ठीक है, अब यहाँ पे apart from making it a strict rule under Environment Protection Act 1986, they have also given responsibility to CPCB. अब इससे पहले CPCB ने कभी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को उन्होंने उससे रिलेटेड वो कभी भी नहीं आए थे. ठीक है, बेसिकली CPCB वॉज रिलेटेड टू आपके रिवर क्लीनिंग, ठीक है, प्लस आपके एयर पोल्यूशन. इन्हीं दोनों चीज़ों से आपका CPCB इनिशियली रिलेटेड था, नॉट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. बट नाउ दिस टाइम दे हैव गिवन CPCB को भी responsibility. That means whoever fails to pay the price, they will get the notification from the government side. ठीक है, अब why this rule? ठीक है, अब ये जो rule है solid waste management which was given in 2026 but it was revived in the year 2026. Why do we need this? ठीक है, so यहाँ पे मैं कुछ डेटा लेके आई हूँ कि हमें ज़रूरत किस लिए है. एनुअल वेस्ट अगर हम लोग देखें, annual waste is generated over 620 lakhs ton per year. ठीक है, annually है तो it would be per year. Daily waste अगर हम generate कर रहे हैं, that is around 1.85 lakhs ton. and उसी का अगर हम लोग daily collection देखें तो हम produce इतना कर रहे हैं, ठीक है, daily, but उसका collection कितना हो रहा है? 1.79. ठीक है, अब daily processing में कितना जा रहा है? इतना, and daily landfilling में इतना जा रहा है. So now landfillings के recording भी वहाँ पे 2026 के रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दी गई. लेट्स रीड इट. ठीक है, सो फर्स्ट प्रोविजन अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वुड बी दैट दे हैव कैटेगराइज्ड द वेस्ट इनटू 4 कैटेगरी. ठीक है, द फर्स्ट वन इज आपका ड्राई वेस्ट. ठीक है, अब अगर हम लोग ड्राई वेस्ट देखें तो इट वुड बी योर प्लास्टिक, पेपर एटसेट्रा. ठीक है, उसी में अगर हम लोग वेट वेस्ट देखें, that would be your kitchen waste. ठीक है, जैसे कि अगर आप दाल फेंक रहे हो कहीं पे, अभी कहीं पे चावल फेंक रहे हो, which is mostly of biodegradable. ठीक है, so that would be your wet waste. Then we have sanitary waste. अब ये जो चीज़ था, it is very very required, but now it has been given importance. But this was very very important thing to do while managing the solid waste. ठीक है, I don't know, personally when I feel as a girl, it have to be included initially also. ठीक है, अब अगर इसी चीज़ों में देखोगे तो we face a lot of problem in a public place where to dispose the sanitary napkin. ठीक है, so उससे भी related इस बार हमारे पास कुछ provisions आए हैं. ठीक है, that is a very good point.
प्लस एन स्पेशल केयर वेस्ट, जहाँ पे आपका अब स्पेशल केयर वेस्ट में कैटेगराइज किया गया है समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, ठीक है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बल्ब्स, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर kept in the special care waste, ठीक है. So we have created 4 categories, आपके solid, wet, sanitary and आपके special care waste, ठीक है. So अभी 2026 के रूल में we have gotten a new provision. Next provision, clear definition of bulk waste generator was given, ठीक है. Clear provision of bulk waste generator was given. That means अब यहाँ पे कुछ कुछ numbers को लेके categorize कर दिया गया है कि if any person or if any organization holds a room of 200 square kilometer, ठीक है, 200,000 square kilometer, not 200 square kilometer, 200,000 square kilometer या तो फिर उससे भी ज़्यादा, plus anyone who is using or any organization which is using more than 400,000 liters of water, ठीक है, उनके ऊपर definitely ये सारे penalties, they have to pay some of the penalties regarding the number of solid waste they are producing, ठीक है, which is of 100 kg per day, plus the amount of water which they are using, which is about 400,000 liter, ठीक है. So उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे provision दिए गए हैं. Bulk waste generator or include entities with a floor area of 20,000 square kilometer. Okay, I'm so sorry, I was telling you 200,000, it is 20,000, ठीक है, 20,000 square kilometer more or water consumption of 40,000 liter. मैं सब पे extra zero डाल रही थी, I'm so sorry, ठीक है. So the room have to be and the area have to be 20,000 square kilometer and water consumption about 40,000 liter and आपका अगर solid waste generate कर रहे हैं 100 kg per day, ठीक है. So they have to give extra compensation. Also introduce extended bulk waste generator responsibility, under which the bulk waste generator are made accountable for the solid waste generated by them. तो जैसे कि अगर हम लोग देखें गुवाहाटी में भी, ठीक है, there are so many places, not so many places, there are few places जहाँ पे we see the dump, ठीक है, and then we see मतलब वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पंजन सा स्मेल भी आता है, प्लस वहाँ पे समटाइम्स वी सी बारिश के मौसम में सारा का सारा आपका कचरा फैल गया है, ठीक है. सो दीज आर द थिंग विच इज मैनेज्ड बाय द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि अभी चीज़ों को अलग अलग से सेग्रीगेट कर दिया गया है, पहले भी किया गया था, विच इज़ योर सॉलिड एंड द ड्राई वेस्ट में. अभी 2 और एक्स्ट्रा कैटेगरीज ला दी गई हैं जिसके थ्रू वी कैन डिफ्रेंशिएट एंड सेग्रीगेट द सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली एंड द ड्राई वेस्ट प्रॉपरली, वेट वेस्ट प्रॉपरली, ठीक है. अब इसमें और क्या पॉइंट है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, ये भी आपको दिया गया है सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल, सो दैट यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट, ठीक है, एंड यू कैन सी द प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ अकॉर्डिंग टू दी 2026 solid waste management rule, ठीक है. So it will track all the stages of solid waste management, including the waste generation, collection and transportation. Sometimes ऐसा होता है कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा कूड़ा तो उठा लेते हैं, बट वो कहीं प्रॉपर जगह में फेंकते नहीं, ठीक है, या तो फिर उसका डिस्पोजल अच्छे से नहीं होता है. सो दिस इज फॉर दैट थिंग ओनली, सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल. अपार्ट फ्रॉम दिस, promoting use of refuse derived fuel. So now again we have a term refuse derived fuel. So यहाँ पे clearly बताया गया है, so refuse derived fuel is produced by shredding and dehydrating municipal solid waste with high calorific value, primarily consisting of non-recyclable plastic, paper and textile, ठीक है. Industrial units including cement plants and waste to energy plants have been mandated to use RDF, ठीक है. तो अगेन एग्जाम पे आ सकता है कि which are the type of industry which have been given mandatorily advice for using RDF, that is your refuse derived fuel. Next one is restriction on landfillings, ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ पॉइंट में ही बताया था कि देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शन इन द लैंडफिलिंग. तो जैसे कि हम लोग पहले ऐसे देखते थे कि कोई भी कूड़ा, चाहे सॉलिड हो, वेस्ट हो, सॉरी वेट हो, या तो फिर स्पेशल जिसमें हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बल्ब्स, पेंट्स, ऐसे कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है,
वो कहीं पे भी लैंड फीलिंग उसका कर दिया जाता था, मतलब कहीं पे भी उसका डंपिंग कर दिया जाता था. बट वी डिड नॉट सी व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट इट वाज गिविंग टू द सराउंडिंग एरिया एंड इटसेल्फ टू द लैंड. ठीक है. सो उसी के रेस्ट्रिक्शन में यहाँ पे उसी के प्रोसीडिंग में कुछ यहाँ पे प्रोविजन दिए गए हैं. दैट इज लैंड फिलिंग्स हैव बीन स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड टू नॉन रिसाइकलेबल, नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट एंड इनर्ट मटीरियल. ठीक है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन हिली एरियाज एंड आइलैंड्स. अब यहाँ पे कैसे हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे? तो जैसे कि अभी आपको करंट सिचुएशन में जैसे कि अभी हम लोग बात करें तो हम सब लोगों ने जैसे कि नॉट हम सब लोगों ने, जैसे कि इन असम देर आर सम एंड देर आर फ्यू मंथ्स वेयर वी गो फॉर पिकनिक. ठीक है. तो पिकनिक के लिए बहुत लोग बहुत सारे नेचुरल जैसे कि बहुत नेचुरली ब्यूटी जो भी सुंदर है वैसे जगह में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. बट वी डू नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग देयर एंड बिफोर चूजिंग दैट प्लेस, दैट व्हाट आर द इम्पैक्ट एंड व्हाट आर द थिंग्स which we are going to do that place after done with our celebration. ठीक है. सो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग पिकनिक में जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लेक के पास जाते हैं एंड उसको गंदा करके चले आते हैं. ठीक है. सो दे डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इसी वजह से वी हैव सीन इन अ लॉट ऑफ पब्लिकली फेमस पिकनिक हॉटस्पॉट जहाँ पे दे यूज टू टेक अ एंट्री फीस. ठीक है. सो वो एंट्री फीस लोकली कलेक्ट किया जाता है सो दैट कि दे कैन पुट समवन आफ्टर यू गो फ्रॉम देयर, आफ्टर यू लीव फ्रॉम देयर दैट प्लेस, तो वहाँ पे किसी को भेज सके एंड उस जगह की सफाई अच्छी तरह से करवा सके. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोजिंग एनवायरमेंटल कंपेंसेशन. अभी यहाँ पे एनवायरमेंटल कंपेंसेशन भी होगा जो लोग गंदा करेंगे एंड हु विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज मटीरियल आफ्टर दैट. ठीक है. सो द रूल्स प्रोवाइड फॉर द लीवाई ऑफ EC बेस्ड ऑन, EC मीन्स आपके एनवायरमेंटल कंपेंसेशन, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल फॉर द नॉन कंप्लायंस. तो जितने भी लोगों ने कुछ XYZ चीज प्रोड्यूस किया है या तो फिर जो भी लोग जहाँ पे भी गंदगी फैला रहे हैं, इफ दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सो उसमें आपके फाइन लगने के चांसेस हैं. ठीक है. दैट मीन्स यू हैव टू डू द कंपेंसेशन. So these are the three important news from the newspaper analysis session. I hope you like the session. If you have any question and comment regarding the session, you can put the comment in the comment section. And if you have any query regarding the crash course and the PDF which we provide, so there is a link given below which I showed you in the beginning of this slide. You can contact there. And thank you for today's session.